lecture of calculus 2. So our next question, so before going to next question, so first I explain the definition of limit of two variables. Suppose limit x comma y, it approaches to a comma b, and this is a function of two variable which is equal to small l. So what it means? It means for epsilon greater than 0, there exists a positive number delta such that for every x comma y minus ab which is less than delta, ਜਦੋਂ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ f of x comma y minus small l less than epsilon, so it means limit of this function is equal to small l. Now in this case, this is a neighborhood of AB. Basically it is a circular neighborhood. So there are three kind of neighborhood of any point in two dimensional. So first, which is called a circular neighborhood. So what it means, circular neighborhood? So if this is a point AB, so any point in this circle is called a circular neighborhood, and this is a radius, so that radius is delta. So this is a circular neighborhood which satisfy this condition. Now second, which is a rectangular or square neighborhood. So if the length and breadths are equal, so in this case, this if this length is, so if this point is a comma b and this is delta and again this is delta, so this delta, so in this case this length is delta, similarly this length is delta, so that is called a square neighborhood. So how I can write the square neighborhood? So this can be written as x minus a less than delta and y minus b less than delta. And in case of rectangular neighborhood, so this and this distance will be different. So in that case I write it as x minus a less than delta 1 and y minus b less than delta 2. Clear? So ਜਦੋਂ ਆ point xy ਇਸ neighborhood ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ neighborhood ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ rectangular neighborhood ਨੂੰ belong ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਚ ਅਗਰ ਇਹ condition satisfy ਹੋ ਜਾਵੇ, so this is the limit of this function at that point. So ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਸੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ proof, this is a proof of the questions. So what is the limit of x y approaches to 0 0 and the function is x y over square root of x square plus y square, this is equal to 0. और ये जड़ा क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है. सो असी मैथड देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस ढंग ਦੇ ਨਾਲ सॉल्व करना. Now solutions. Now first step, what is the functional values? So here this function f(x, y), so this is equal to
एक्स वाई ओवर square root of x square plus y square. Now this function is exist for every value except when x y which is not equal to 0 0. It means the domain of the function is r square except one point, that point is 0. सो 0 0 ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो फंक्शन डिफाइन नहीं है। हुण नेबरहुड कोई भी चूज़ करके आप चाहे सर्कुलर चाहे जिस हिसाब नाल भी आप नेबरहुड चूज़ कर सकते हैं। सो कोई भी असी नेबरहुड चूज़ करांगे। सो फस्ट लैट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी सम गिवन नंबर। सो इट इज़ सम आर्बिट्रेरी गिवन नंबर एंड सैकेंड टेक डेल्टा। हुण डेल्टा किहड़ा चूज़ करना ये आपां एज पर सिचुएशन देखांगे कि किहड़ी डेल्टे दी वैल्यू सानू सूट करदी। सो डेल्टा इज़ इक्वल टू दिस वैल्यूज, वो जो भी होएगा आपां इस जगह ते लिख लांगे। और एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 गिवन नंबर सच दैट इट सैटिस्फाई x माइनस 0 लेस दैन डेल्टा एंड y माइनस 0 लेस दैन डेल्टा। ठीक है जी, ये साढ़े कोल गिवन है। असी प्रूव की करना कि जिहड़ी लिमिट है एफ एक्स वाई माइनस एल वो कितना है 0, ये लेस दैन एप्सिलॉन हो जाए। सो इनू प्रूव करन लई इहदी वैल्यू पुट करदा। सो दिस इज़ एक्स वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर plus y square minus 0. So this value can be written as modulus of x modulus of y over square root of x square plus y square. This values आ गई। हुण आपां अगर ध्यान नाल समझण दी कोशिश करिए, जो साडे कोल इन्ना पार्ट है इट इज़ लैस दैन 1 वाई। सो उहनूं आपां चैक करिए भी एक तो छोटा एक क्यों है। ठीक है जी, सानू पता वी नो दैट क्योंकि एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव नंबर आ, तो इन्हां दोनों का सम एक्स स्क्वायर तो भी बड़ा होएगा तो वाई स्क्वायर तो भी बड़ा होएगा। तो मैं वाई स्क्वायर ले लिया। सो इट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लैस दैन इक्वल टू 1। तो ये याद रखना, ये पॉसीबल कदों आ जदों एक्स भी नॉन जीरो आ वाई भी नॉन जीरो, या नीचे वाली टर्म साडे कोल की है नॉन जीरो है जदों एक्स वाई डोमेन नू बिलोंग करदा। सो वट इट मीनस टेकिंग स्क्वायर रूट दिस इज़ मॉडुलस एंड दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लैस दैन इक्वल टू 1। तो सानू क्लीयर हो गया कि जिहड़ा साडे कोल पार्ट दी आपां गल कर रहे सी वो पार्ट किदां दा आ लैस दैन 1। सो अगर वो लैस दैन 1 ना, सो ये हो गया मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू 1। मॉडुलस ऑफ एक्स किहदे तो लैस आ डेल्टे तो। साडी रिक्वायरमेंट इत्थे की आ एप्सिलॉन, तो डेल्टे नूं आपां कितना चूज़ करांगे एप्सिलॉन चूज़ करांगे। ठीक है जी, हुण आपां जिथे डेल्टे की वैल्यू लिखनी सी उत्थे असी डेल्टे की वैल्यू चूज़ कर लांगे। डेल्टा शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन। तो असी उस जगह ते एप्सिलॉन फिट करता, सबस्टिट्यूट करता। सो वट वी गेट, सो वी गेट इट इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स वाई माइनस 0 लेस दैन एप्सिलॉन for every x minus 0 less than delta and y minus 0 less than delta. So what it means? It means the limit of x comma y approaches to 0 comma 0 f x y, this limit is equal to 0। राइट। सो इस ढंग दे नाल असी इस टाइप नू क्वेश्चन नू करांगे। ठीक।
ठीक है जी। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्ज़ाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ what is the statement, let this f which is from r square to r की a set of real number, तो this is function b defined by, this function is defined by f of x comma y, so this value is equal to 1 and 0 when x is a rational number। so इस केस च x की है रैशनल नंबर और इस केस च x की है इरेशनल नंबर। सो y कुछ भी होवे यानी y रियल नंबर होवे, बट अगर x रैशनल नंबर आ और दूजे केस च x इरेशनल नंबर, असीं इहनूं उल्ट भी कर सकते हैं। इत्थे x इरेशनल नंबर भी आ सकदा, x रैशनल भी आ सकदा। सो ये जिहड़ी टाइप है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्ज़ाम दे विच 2001, 2019, 2013 ठीक है पूछा गया, पर उत्थे x साडे कोल इरेशनल नंबर दिता सी, पर मैं उल्ट कर लिया, मैं x रैशनल नंबर कर लिया, इत्थे x इरेशनल नंबर कर लिया, ताकि क्वेश्चन अगर किसी ढंग नाल भी पूछा जा सके तो असी उन्होंने प्रूव कर सकीए। तो प्रूव की करना, शो दैट फॉर एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट लई x नॉट y नॉट, लिमिट x y अप्रोचेस टू x नॉट y नॉट f of x y it does not exist। तो ये जड़ी लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो दिस टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक याद रखना। हुन अगर असी प्रूव करना चाहते हैं कि ये साडे कोल जड़ी लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो असी इनू कंट्राडिक्शन नाल चलांगे। कंट्राडिक्शन मीन असी मान लांगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो मान लो सपोज कि दिस लिमिट ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू एल, मान लो एग्जिस्ट कर दिया और इहदी जिहड़ी वैल्यू है वो एल दे बराबर आ जाती है, जिन्हों मैं इक्वेशन नंबर ए मैंशन कर लिया। सो बाय डेफिनेशन की होएगा फॉर अपसाइलन ग्रेटर दैन 0, ठीक है जी, देयर एग्जिस्ट। हुण डेल्टा 1 होएगा जे असी स्केयर नेबरहुड लैनी, जे रैक्टेंगल लैनी तो 2 डेल्टे होंगे। तो मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 ग्रेटर दैन 0 such that this f of x y minus small l it should be less than epsilon for every x minus x naught less than delta 1 and y minus y naught less than delta 2, ठीक है जी। तो ये साडे को रेक्टेंगुलर नेबरहुड हो गई, यानी x किनू बिलोंग कर रहा, सो x नॉट माइनस डेल्टा इंटू साडे को दिस वैल्यूज। अपसाइलन जड़ा वो आर्बीट्रेरी है, जे अपसाइलन आर्बीट्रेरी है तो मैं अपसाइलन दी वैल्यू जड़ी है 1 चूज़ कर ली, जे 1 चूज़ कर ली तो साडे कोल आ गया एफ एक्स वाई माइनस स्मॉल एल, दिस इज़ लेस दैन 1 फॉर दिस। आ साडे कोल की है, इट इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट माइनस डेल्टा 1, नाल आ गया एक्स नॉट
प्लस डेल्टा 1, ठीक है जी। और दूजे पासे y बिलोंग कर गया y0 माइनस डेल्टा 2 और y0 प्लस डेल्टा 2, ठीक है जी। आही चीज़ नूं मैं इस फॉर्म दे विच लिख लिया। सो बेसिकली जिहड़ा x, y पॉइंट है किहनूं बिलोंग करदा, ये जिहड़ी साडे कोल नेबरहुड असीं चूज़ कीती आ, ये असीं रैक्टेंगुलर नेबरहुड चूज़ कीती, जे तुहानूं याद होवे। सो दिस इज़ ए रैक्टेंगुलर नेबरहुड। जे रैक्टेंगुलर नेबरहुड है तो ये किस तरह की होएगी, ये इस तरह की होएगी, ठीक है जी। हुण इस रैक्टेंगुलर नेबरहुड दे विच जिहड़ी x वाली नेबरहुड है, ये पॉइंट होएगा x0 माइनस डेल्टा 1 और ये पॉइंट होएगा x0 प्लस डेल्टा 1। तो इत्थे किते पॉइंट जिहड़ा है वो x0 होएगा। अगर मैं आ पॉइंट लेना x0 y0, तो आ पॉइंट साडे कोल x0 हो गया। सो सिमिलरली जिहड़ी साडे कोल y वाला पोर्शन है, तो y वाला पोर्शन जिहड़ा हो जाएगा साडे कोल, अगर साडे कोल दिस पार्ट अप्रॉक्सीमेट ए उहदे बराबर y0 आ, तो साडे कोल इत्थों लैके इत्थे तक दा जिहड़ा रीजन है, देखो अगर असीं इहनूं रैक्टेंगुलर एक्सिस नूं एक्सिस दे विच रिप्रजेंट कर रहे हैं, तो साडे कोल इत्थों लैके इत्थे तक जिहड़ा पार्ट है वो किहड़ा हो जाएगा x0 माइनस डेल्टा 1 x0 प्लस डेल्टा 1, ठीक है जी। उस ढंग नाल इत्थों लैके इत्थे तक दा पार्ट की हो जाएगा y0 माइनस डेल्टा 2 y0 प्लस डेल्टा 2, ठीक है जी। सो इत्थे एक y0 होएगा, इदां ही इत्थे एक x0 होएगा। नाउ दिस पॉइंट, नाउ कोई भी पॉइंट अगर ये लेने, मान लो x, y लिया, तो x इनू बिलोंग करेगा, y इनू बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर x इनू बिलोंग करता, दैन x मे बी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। तो असी दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट दे विच x नू असी रैशनल नंबर लईए और दूजे पॉइंट च x नू इरैशनल नंबर लईए। सो लैट x1 असी ले लिया रैशनल नंबर और x2 मैं ले लिया इरैशनल नंबर, ठीक है जी। ये ले लिया। हुण जिहड़ा साडे y साडे कोल रियल नंबर है, y बारे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो असी रियल नंबर ले लिया। अगर x1 रैशनल नंबर आ, तो f(x1, y) इहदी वैल्यू कितनी होएगी, जो आपां क्वेश्चन च कीता आ कि रैशनल नंबर नाल इहदी वैल्यू 1 होएगी और इरैशनल नाल f(x2, y) इहदी वैल्यू की होएगी 0 होएगी। हुण x1 y ये भी नेबरहुड च, x2 y ये भी नेबरहुड च, इहदा मतलब जिहड़ी गिवन कंडीशन है वो सैटिस्फाई करते, यानी x1, y माइनस दिस l, दिस इज लेस दैन 1 और सिमिलरली f(x2 y माइनस 1 दिस इज लेस दैन 1। जे असी एप्सिलॉन 1 लिया, जे 1/2 लिया तो इत्थे असी 1/2 कर दी, ठीक है। सो असी 1/2 ले लेने 1 की बजाय। सो मेरे कोल इनू पहला असी 1/2 कर दी, दिस इज़ 1/2, ठीक है जी। सो दिस इज़ 1/2। अगर 1/2 ले लिया तो ये दोनों ए कंडीशन नू सैटिस्फाई करते, ये बारे कोई दो राय नहीं। हुण ये तो ही आपां कर सकते हैं f(x1, y) माइनस f(x2, ਜਾਂ इत्थे पहला वैल्यू पुट कर ली, चलो। सो वैल्यू पुट कर ली, ये वैल्यू कितनी 1, ये वैल्यू कितनी 0। सो ये तो मेरे को फाइंड आउट होया 1 माइनस l लैस दैन 1 एंड ये तो आया 0 माइनस l लैस दैन अगेन 1/2, ठीक है जी।
Now 1 can be written as L minus 1 minus L, L plus 1 minus L. Triangle inequality lie. So this is a modulus of L plus 1 minus L. So what it means? It means this value is less than 1 by 2. Again this value is 1 by 2. Total value is 1. So what we get is 1 is less than 1. So what we get 1 is less than 1. So which is absurd. Hence our supposition is wrong. If our supposition wrong, तो जो असी मान रहे सी वो गलत हो गया. अगर गलत हो गया ਇਹਦਾ मतलब कि this limit x y approaches to x naught y naught f of x y, it does not exist. It does not exist. क्लीयर हो गया जी. तो साढ़े कोल ये जड़ी लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती. सो इदां दे जिहड़े क्वेश्चन है इन्हां नूं बड़े ध्यान दे नाल ये 2008 च भी है 13 च भी है. सो इंटरचेंज करके ये पूछे जा सकते हैं. सो बहुत ध्यान दे नाल इन्हां नूं देखना ना. इस तो बाद इसे टाइप का एक होर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असी वो डिस्कस कर लीए. सो वट इज़ दैट? लेट ए विच कंसिस्टिंग द एलिमेंट x, y और x y बिलोंग कर रहा रियल नंबर r और x की वैल्यू है 0 लेस दैन x लेस दैन 1 और y की वैल्यू है 0 लेस दैन इक्वल टू y लेस दैन 1. ठीक है जी. सो ये साढ़े कोल ए आ गया. नाउ असी एक मैपिंग सानू दिती है एफ ए टू आर. सो ए की आ दिस ये साढ़े कोल सैट आ गया. ए टू आर सानू मैपिंग दिती है और दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय किदां दा फंक्शन? फंक्शन है जी एफ एक्स कॉमा वाई. दिस वैल्यूज़ आ गया राइट. दिस वैल्यूज़ और यदी वैल्यू 1 है अगर y नॉन ज़ीरो हो जाता और यदी वैल्यू 0 है अगर y 0 हो जाता. सो कंसैप्ट सेम कंसैप्ट नाल चलना. तो असी प्रूव करना शो दैट लिमिट ऑफ x y approaches to 0 and 1 by 2 this. So पहला 1 by 2 and 0. So first is 1 by 2, second is 0. f of x y it does not exist. It does not exist. So बिल्कुल उसे ढंग नाल जिस ढंग नाल असी पिछला क्वेश्चन जिहड़ा कीता आ. सो बिल्कुल उस ढंग दे नाल असी इस क्वेश्चन नूं भी प्रूव करांगे कि असी प्रूव की करना चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. तो अगेन कंट्राडिक्शन नाल मान लो सपोज दिस लिमिट एग्जिस्ट. लिमिट x y अप्रोचेस टू 1 by 2 0 किस फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स वाई ये एग्जिस्ट कर दी और यदि कोई ना कोई वैल्यू होएगी वो मैं नाम रखता स्मॉल एल. एग्जिस्ट कर दी है और यदि वैल्यू जी है वो स्मॉल एल हो गई. हुण आपां इस तो अगे चलीए. अगर हो गई तो बाय डेफिनेशन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट delta 1 delta 2 greater than 0 such that f x y
minus L less than epsilon for every x minus पहला पॉइंट की है 1/2 इट शुड बी लेस दैन डेल्टा 1 दूजा है y माइनस 0 लेस दैन डेल्टा 2 ठीक है जी। सो इस पॉइंट दे विच इस रीजन दे विच आ कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए है। एप्साइलन की है आर्बिटरी तो असी एप्साइलन की चॉइस कर लीए 1/2 क्लीयर हो गया जी। हुण साडे कोल जिहड़ा गिवन फंक्शन है वाई दे उत्ते डिपेंड कर रहा सो इहदा मतलब साडे कोल इत्थों की आया पहला इनू होर एक्सप्लेन कर देना कि f(x(y) माइनस L less than 1/2 सो दिस इज़ फॉर xy किनू बिलोंग कर रहा xy इस रैक्टेंगल नू बिलोंग कर रहा इस रैक्टेंगल नू बिलोंग कर रहा इस रैक्टेंगल नू बिलोंग करन दा मतलब की है कि जिहड़ा साडे कोल x है इट बिलोंग्स टू 1/2 माइनस डेल्टा 1 1/2 प्लस डेल्टा 1 ठीक है जी। और y जिहड़ा है ये किनू बिलोंग कर रहा ये कर रहा माइनस डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा 2 ठीक है। सो ये विच जीरो आएगा क्योंकि माइनस डेल्टा ये जीरो की नेबरहुड आ तो जीरो इस नेबरहुड दे विच इनवॉल्व होएगा। हुण आपां y की चॉइस करनी है तो 2y लै लीए इस रीजन च एक लै लीए नॉन ज़ीरो और दूजा लै लीए ज़ीरो। सो लेट y1 y2 इट बिलोंग्स टू दिस माइनस लैम्डा 2 सच दैट एक लै लीए y1 नॉन ज़ीरो और दूजा लै लिया y2 ज़ीरो ठीक एक ज़ीरो लै लिया और एक नॉन ज़ीरो लै लिया और जिहड़ा x है ये उससे ही टर्म नू बिलोंग करेगा यानी 1/2 माइनस लैम्डा 1 दूजा 1/2 प्लस लैम्डा 1 राइट। सो x कोई भी नंबर आ y1 y2 साडे कोल किदां दा हो गया एक ज़ीरो और एक नॉन ज़ीरो उहदे मुताबक f(x(y1) ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ पहली गल तो क्योंकि पॉइंट इस नेबरहुड दे विच आ तो साडे कोल इस कंडीशन नू सैटिस्फाई करनगे किहड़ी कंडीशन जी f(x(y1) माइनस L लैस दैन 1/2 दूजा f(x(y2) माइनस L लैस दैन 1/2 दिस आ गया। हुण पहली कंडीशन च y1 किदां दा आ सो y1 असी चूज़ किया आ नॉन ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू कितनी हो गई उसकी फंक्शनल वैल्यू 1 आ गई। सो x y1 नाल इहदी वैल्यू आ गई 1 और f(x(y2) नाल इहदी वैल्यू आ गई 0 ठीक है जी। ये सबस्टिट्यूट कर दिए जो सबस्टिट्यूट किया ये आ गया 1 माइनस L लैस दैन 1/2 एंड दूसरी टर्म आ गई 0 माइनस L सो दिस इज ए 0 माइनस L लैस दैन 1/2 सो दोनों कंडीशंस आ गई। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 which can be written as 1 minus L plus small l triangle inequality नाल 1 minus L plus modulus of L so this is less than 1/2 plus 1/2 which is equal to 1 so again what we get 1 is less than 1 so which is absurd if it is not possible then our supposition is wrong if our supposition is wrong तो अगर गलत हो गया ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ लिमिट है it does not exist
सो विच प्रूव आवर रिजल्ट। सो असी इस ढंग दे नाल जिहड़ा क्वेश्चन नूं करना कि अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट प्रूव करनी वो किस ढंग नाल असी प्रूव करना। और मोस्टली एग्जाम दे विच जिहड़े क्वेश्चन आ वो इहदे नाल रिलेटेड आउणगे कि जिहड़ी साडे कोल लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ क्वेश्चन नंबर दिस फोर्थ क्वेश्चन, सो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आइडिया मैं तुहानूं दूंगा। सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट लेट एफ फंक्शन है आर क्यूब, है ना, 3 डायमेंशनल दे विच भी एक क्वेश्चन कर लिया, आर क्यूब तो आर तक जा रहे हैं और दिस इज़ बी डिफाइंड बाय this is f of x y z, so this value is x square plus 2y square plus 3z square। ठीक है जी, ये सानू गिवन दिता है 2y square एंड 2 ही z square, सो 3 भी आ सकता, सो आपां 2 दे नाल ही चलीए। तो असी क्या करना चाहते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, अगर साडे कोल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 दिता होया है तो असी लभना की है डेल्टा, फाइंड डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट किहड़ी कंडीशन नूं सैटिस्फाई करे कि जदों तां x, y, z माइनस 0 0 0 दिस इज़ लैस दैन, साडे कोल की होएगा, सो दिस इज़ लैस दैन डेल्टा, इट इंप्लाइज f ऑफ x, y, z माइनस दिस वैल्यू 0 लैस दैन एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है जी, सो बेसिकली इत्थे डेल्टे दा एप्सिलॉन नाल रिलेशन लभना जदों साडे कोल इस कंडीशन नूं सैटिस्फाई करता, मतलब ये कि जदों मेरे कोल आ कंडीशन है, दिस कंडीशन है, तो मैं प्रूव करना कि मेरे कोल आ कंडीशन जिहड़ी आ वो सैटिस्फाइड होवे। ठीक है जी, सो इस चीज़ नूं असीं प्रूव करना। हुण आ साडे कोल टर्म दित्ती है, ये क्या टर्म है, x माइनस 0 y माइनस 0। जे असीं इहनूं इस फॉर्म च देखिए तो ये साडे कोल की बन जाती एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, एक तो इस टाइप की बन जाती है। ठीक है जी, और दूसरा साडे कोल अगर असीं रेक्टेंगुलर या दूसरे फॉर्म दे विच चलीए तो वो आ जाएगा x माइनस 0 लैस दैन डेल्टा, y माइनस 0 लैस दैन डेल्टा एंड सो ऑन। तो असी यही कंडीशन के मुताबिक चलते हैं, साडे कोल x y z माइनस 0 0 ते 0, ये सानू की दिता लैस दैन डेल्टा, सो दिस इज़ लैस दैन डेल्टा। अगर लैस दैन आ साडे कोल जिहड़ा क्वेश्चन है ये 2x स्केयर है, सो रिमेंबर 2x स्केयर। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर और सारे दा स्केयर रूट लैस दैन डेल्टा, इट इंप्लाइज x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस जेड स्केयर, दिस इज़ लैस दैन डेल्टा स्केयर, रिमेंबर दैट। ठीक है जी, ये मेरे को गिवन है। प्रूव मैं की करना चाहना, एफ ऑफ एक्स वाई जेड माइनस 0 0 या 0 कला 0 दिस वैल्यूज़ आ गई। सो दिस इज़ जो भी फंक्शन की वैल्यू दिती होवे उन्होंने असी इत्थे लिख लीए 2z स्केयर माइनस 0, दिस वैल्यूज़ आ गई। सो व्हाट इज़ दिस वैल्यू इज़ 2 टाइम, क्योंकि पॉजिटिव आ
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर, ठीक है। आ किहदे तो लैस आ, ये डेल्टा स्केयर 2 डेल्टा स्केयर, दिस आ गया। हुण आ टर्म मैनू की चाहिए, एप्साइलन। तो एप्साइलन कदों होएगी, जदों असी चूज़ करांगे डेल्टा विच इज़ इक्वल टू, ठीक है। हुण देखिए एप्साइलन कदों होएगी, ये एप्साइलन होएगी जदों डेल्टा स्केयर हो जाएगा एप्साइलन बाय 2 और दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू एप्साइलन बाय 2 स्केयर रूट। तो डेल्टे की चॉइस तुसी आ कर लो, जे आ कीती तो दिस टर्म विल बी साडे को लैस दैन एप्साइलन। तो तुहाडे को जिहड़ा डेल्टे ते एप्साइलन च रिलेशन आ गया वो इहदे बराबर आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट। नाउ इस तो अगे आपां एक होर क्वेश्चन देख लईए। सो वट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि लेट एफ इज़ फ्रॉम आर स्केयर टू आर, ठीक है जी। ये फंक्शन है और दिस फंक्शन बी डिफाइंड बाय, दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ x1 x2 x3 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू x1, ठीक है जी। सो असी प्रूव करना चाहते हैं show that limit of x y z या x1 x2 x3 it approaches to point किहड़ा दिता 1/2 0 ते 0 और दिस फंक्शन इज f x1 x2 x3 और यदी लिमिट कितनी होनी चाहिए 1/2 के बराबर। ये असी प्रूव करना और ये क्वेश्चन जिहड़ा है पंजाब यूनिवर्सिटी 2002 दे विच ये पूछा गया। हुण असी इहनूं प्रूफ किद्दां करना, ठीक है जी। सेम मैथड कि एप्साइलन ग्रेटर दैन 0 चूज़ करो, सॉल्यूशंस लेट एप्साइलन greater than 0 be any given number, so be any given number, ठीक है जी। तो लेना कौन आ डेल्टा, किद्दां दा होएगा बाद च चूज़ कर लैने आ और नाल कंडीशन की होनी चाहिए दिस डिफरेंस यानी कि आपां x1 माइनस 1/2 लैस दैन डेल्टा, फिर ले लिया मैं इको ही लिया ताकि डिफरेंट नहीं लाए x2 माइनस 0 लैस दैन डेल्टा, थर्ड x3 माइनस 0 लैस दैन डेल्टा, ठीक है। तिन्ने सेम है। सो 3 कंडीशंस हो गई। प्रूव आप की करना चाहते हैं f x1 x2 x3 -1/2, ठीक है। ये लैस दैन एप्साइलन हो जाए। सो यदि वैल्यू पुट कर दईए, यदि वैल्यू कितनी है x1 -1/2, ठीक है। तो पहली ही कंडीशन एप्लीकेबल हो गई। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ लैस दैन डेल्टा। हुण डेल्टे नूं कितना चूज़ करोगे एप्साइलन, सो दिस इज़ इक्वल टू एप्साइलन। तो व्हाट वी गेट, सो वी गेट दिस डिफरेंस इज़ लैस दैन एप्साइलन। तो असी की प्रूव करता f ऑफ x1 x2 x3 -1/2 less than epsilon for every x1 minus 1/2 less than delta, x2 minus 0 less than delta, x3 minus 0 less than delta. So which prove our result. So कोई भी साडे कोल टाइप आ जाए उन्होंने असी इस ढंग दे नाल जिहड़ा है वो प्रूव करना।
ਸੋ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟਡ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ।